this evening with some really haunting lines of a poem that Agge had written against war and with humanity in his pen. एक दिन सहसा सूरज निकला क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से छायाएं मानव जीवन की दिशाहीन सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में. This is the very harsh reality which he wrote with the title Hiroshima. हिरोशिमा वर्ल्ड वॉर 1 सेकेंड और ऐसे दुनिया भर में संघर्ष और युद्ध परिवारों को तोड़ रहे हैं और तोड़ते आए हैं और लोगों को कहीं और सुरक्षा पाने की उम्मीद में अपने घरों को अपनी दहलीजों को अपने प्रियजनों को छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं. The humanitarian impact of war on all those involved is great. The principle of humanity is at the core of everything that matters in all spheres of life, in times of peace and in times of war as well. In every country of the world, there must be humanity on the battlefield, and we must do all we can to limit war and suffering. Now, coming back to our today's session, in the certain yet recovering times of the pandemic in 2021, Sakshi History Society of Shamlal College Evening turned the adversity of the pandemic into a great opportunity through their first initiative, that is, Graduate Scholars Talk Series. This commendable initiative puts forward a scholastic and professional platform for graduate candidates all across the country who are ardent to portray their thoughts, opinions, and understanding of miscellaneous topics. GSTS became a beacon that kept the spirit of education alive by giving authentication to the presentation of the candidates who are entirely their works of research. Initiated on the 7th of February 2021, this meritorious platform gave voice to individuals with stage fear, graduates who have never spoken before, to those who had never done any research. Through this, they paved the path to creating better individuals and professional scholars. The determined visions and the aspirations of Dr. Manish Karwawar, who is the current founder and advisor of GSTS, along with the precise execution of the plans by the moderators, Mr. Shubham Tiwari, Mr. Saurabh Singh, Mr. Rajat Gupta, Ms. Manvi Saraswat, Ms. Samriddhi Kanpal, Mr. Manthan, and me myself have brought about a beginner of academic excellence. GSTS has completed its 165 continuous talk series so far, but still there are many more years to count, many more illuminating sessions to relish, and a lot more memories and experiences to cherish in a dedicated initiative like this. Now, after I told you about the initiative, it's time to invite today's guest of honor. And now I would like to invite today's guest of honor for this session, who warmly accepted our invitation and delivered his presence today. I would like to welcome Dr. Sharad Sharma sir. Sir, thank you so much for connecting with us. और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी initiative में. Now, before inviting you to put your initial remarks and permission to continue this session further, I would like to introduce you to our audience. Dr. Sharad is an assistant professor at Department of Curriculum and Pedagogy and OSD examination at SCERT, which is State Council of Educational Research and Training, and it is an autonomous agency under government of NCT Delhi. He has completed his masters in education history and political science and masters of philosophy in education and UGC NET in education as well. He has 20 years of experience in the field of teaching and other concerned fields. He worked in variety of areas like pre-service and in-service training of DLED and B.Ed students, national education policy implementation tasks, material development and research projects of DIET and NCERT, along with examination process of DIETs and affiliated institutes, etc.
Now, I would like to request you, sir, to give us your permission to start the session further with some of your initial remarks. जी, मनीष सर नमस्कार। सभी साथियों नमस्कार। को सभी साथियों और विद्यार्थियों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मनीष सर की एक ओजस्वी शब्दों के साथ कार्यक्रम शुरू होता है और काफ़ी समय से मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को, पूरी टीम को, और चाहूँगा मैं सुबह शीघ्रम तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। स्वागत है, धन्यवाद। Thank you so much, sir. And we are waiting for your final remarks as well. But before this, let's invite today's speaker. People are people, they fight and sometimes kill. Humans have always had a capacity to make war if conditions and culture so dedicate. But those conditions and the warlike cultures they generate became common only over the past 10,000 years. 10,000 years, and in most places much more recently than that. The high level of killing often reported in history, ethnography, and later archaeology is contradicted in the earliest archaeological findings around the globe. Since warfare is only an invention, not a biological necessity. So today's talk is going to be this on this issue only, where our today's speaker, Mr. Akash Tyagi from Shamlal College Evening, University of Delhi, will highlight the current happening global scenarios of conflicts and wars, and he will be delivering his talk on the topic possibilities of World War III. So, Mr. Akash, now the stage is all yours. You can go ahead with your talk. Hello everyone, I'm Akash Tyagi. I'm the first year student of BA program at Shamlal College Evening, University of Delhi. I'm the speaker of today's session and the topic of today's session is the possibility of World War III. Before I start, I would like to thank the GSTS team and our today's guest of honor for joining this and GSTS team for providing me this great opportunity. Now I start with the objectives of the talk. इस सेशन के स्टार्टिंग में मैं बात करूंगा कि मैंने टॉपिक चूज क्यों किया था, जिसमें थोड़ा मीडिया का रोल हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं कनेक्ट करूंगा पहले दो वर्ल्ड वॉर के रीजंस और सिनेरियो को प्रेजेंट सिचुएशन से, और फिर हम देखेंगे वर्ल्ड के कुछ रीजन्स को जो आज के टाइम में वॉर्स में एंगेज्ड हैं और मोस्ट पॉसिबल रीजन्स हैं और एक परफेक्ट बैटल ग्राउंड क्रिएट करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। व्हाई चूज दिस टॉपिक, और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन में कंट्रीज के क्या स्टैंड्स हैं। साथ ही मैं बात करूंगा वॉर के ह्यूमैनिटेरियन और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ, व्हाई डिड आई चूज दिस टॉपिक। तो मेरे इस टॉपिक को चूज करने के पीछे मीडिया का एक बड़ा रोल था, क्योंकि 2020s की अगर मैं बात करूं, जब मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट इस्टेब्लिश होने लगा एक वर्ल्ड वॉर या फिर वॉर्स की सिचुएशंस को लेकर, तो फिर उस टाइम पर हेडलाइंस छपती थी मीडिया में कि क्या ये सिचुएशन है वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि उस टाइम पर चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट था पेंगोंग सो लेक को लेकर। साथ ही अगर हम थोड़े ईयर्स के बाद की बात करें, जैसे 2022 में रशिया और यूक्रेन इन्वेजन को लेकर, 2023 में इसराइल पैलेस्टाइन आर्मेनिया अजरबैजान और चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर न्यूज हेडलाइंस छपती थी कि क्या ये सिचुएशन वॉर की है और हम एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। पर क्या हम सच में एक वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? चलिए जानते हैं इस सवाल के जवाब को। अब हम आते हैं रीजंस बिहाइंड द वर्ल्ड वॉर्स। अगर हम प्रीवियस दो वर्ल्ड वॉर की बात करें, तो फिर यूरोप उसका एक एपिसेंटर था, जहां पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और पावर स्ट्रगल हमको देखने को मिलती है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यूरोप में कंट्रीज के आपस में टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, प्रूशियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर आपस में टेरिटरीज को लेकर और एक यूरोप में पावर को अपनी हेजमनी को इस्टेब्लिश करने के लिए आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स में थे।
और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते उन्होंने अपनी मिलिट्री को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया था। जैसे कि हम वर्ल्ड वॉर वन के बाद देखते हैं नाजी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के टाइम पर आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया, जो कि पहले तो डेटरेंस के लिए यूज की गई, लेकिन बाद में फिर उसको एक एक्सपेंशनिस्ट पावर की तरह यूज किया गया। जैसे कि हमने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर देखा था कि जर्मनी ने अटैक कर दिया था पोलैंड और बाकी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज पर। साथ ही हमें स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट राइट विंग राइज देखने को मिला था उस टाइम पर, जैसे कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का राइज, जो कि एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के साथ उभर कर आए थे पावर के लिए। एक बड़ा फैक्टर जो प्रीवियस वर्ल्ड वॉर में देखने को मिलता है वो है कंट्री के अलायंस को लेकर। कंट्रीज अलायंस बना चुकी थी उस टाइम पर, और एक डिवाइड हमको देखने को मिलता है वर्ल्ड में, एक ब्लॉक को लेकर और एक दूसरे नैरेटिव्स को लेकर, जो कि डायरेक्टली वॉर में एंगेज होना स्टार्ट कर देती है बाद में, अपने आपस में डायरेक्टली एंगेज होना स्टार्ट कर देती है अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो ये कुछ कारण थे प्रीवियस टू वर्ल्ड वॉर्स को लेकर। पर क्या आज हम ऐसे कुछ देखने देखने को मिल रहा है कि ऐसे कुछ सिनेरियोज हो जो कि प्रीवियस टू वर्ल्ड वॉर्स के इन सिनेरियो को लेकर सेम हो? तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँगा कि आज के टाइम पर हमें यह फैक्टर्स कुछ अलग फ़ॉर्म्स में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सी जगहों पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमको देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन आज के टाइम पर भी अगर हम देखें तो फिर बहुत से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आर्मेनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ था, और चाइना एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है हमारा इंडिया के साथ भी, और बाकी अदर कंट्रीज़ के लिए भी एक थ्रेट है। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और फिर पावर स्ट्रगल, आर्म रेस और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो कि हम आज के टाइम में भी राइज होते हुए देख रहे हैं। तो प्रीवियस रीजंस के अलावा हम देखते हैं कि कोई कंट्री एक डायरेक्ट वॉर में एंगेज नहीं हो रही है। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो फिर कंट्रीज डायरेक्टली वॉर्स में एंगेज होना नहीं चाहती हैं। कंट्रीज प्रॉक्सीज का यूज करती हैं, जैसे ईरान ने कई सारे रिबेल्स को सपोर्ट करता है। साथ ही में यूएसए की अगर हम बात करें या फिर रशिया की बात करें, तो फिर कंट्रीज डायरेक्टली वॉर में एंगेज होने की जगह प्रॉक्सीज का यूज करती हैं, मिलिटेंट्स को सपोर्ट करती हैं या फिर रिबेल्स को सपोर्ट करती हैं। तो चलिए कुछ जानते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ से। जैसे कि सबसे पहले आता है क्वेस्ट ऑफ एम्पायर्स। तो इसको टाइटल को अगर मैं समझाऊं तो फिर वो कुछ इस तरह से होगा कि ईरान, रशिया और चाइना कुछ वो पावर्स हैं आज के टाइम में देश दुनिया में, जो कि एक एम्पेरिकल स्टेटस जो रखती थी वो पहले, उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहती हैं। जैसे अगर हम बात करें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, तो फिर वो कहते हैं जिस तरह से सोवियत यूनियन या फिर उससे पहले के टाइम पे रशिया के पास जो हेजिमनी थी वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर पे, तो वो रिवाइव करना चाहते हैं, उसको रिक्लेम करना चाहते हैं। इसी तरह से ईरान की अगर हम बात करें तो फिर पर्शियन एम्पायर या फिर जो वेल्थ उसके पास थी 1970s से पहले, या फिर कहें इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले के टाइम पर, तो उस सब चीज़ों को वो दोबारा से रिवाइव करना चाहता है और एक इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी हेजमनी दोबारा से रिक्रिएट करना चाहता है। चाइना की अगर बात करें तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना का दोबारा से रिवाइव तो हुआ, लेकिन उससे पहले का जो टाइम पीरियड था, जो कि था एक ग्रेट ईयर्स ऑफ ह्यूमिलेशन का, तो फिर चाइना उसको ध्यान में रखते हुए दोबारा से अपनी हेजेमनी को रिक्रिएट करना चाहता है कि हमारे साथ अगर इतना कुछ बुरा हुआ है तो फिर हमको कुछ और वर्ल्ड में जो स्टेज हमको मिलनी चाहिए थी, जो शायद से वो डायरेक्टली कम्पीट करता है यूएस के साथ। तो हम इन सब चीज़ों को जानेंगे आगे। तो जैसे कि अभी हम एक न्यूज़ हेडलाइन देख रहे हैं कि चाइना कोस्ट गार्ड फायर वाटर कैनन्स एट फिलीपींस वेजल्स इन लेटेस्ट साउथ चाइना सी इंसिडेंट। तो ये दिखाता है कि किस तरह से चाइना एक एग्रेसिव स्टांस रखता है साउथ चाइना सी में या फिर ईस्टर्न एशिया में। और साथ ही चाइना का एक जो बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्टिव जो पॉइंट है वो है साउथ चाइना सी को लेकर। चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन के थ्रू, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अंडर जो भी एरिया आता है, चाइना उसको बोलता है कि ये हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है और यहाँ तक हमारे पहले टेरिटरीज एक्सटेंडेड थी, तो ये हमारे हमारे पास होना चाहिए। लेकिन ये एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसी एरिया में कई सारे जो अदर
कंट्रीज हैं उन सभी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स आते हैं, और कुछ में तो कंट्रीज के आइलैंड्स और कंट्रीज खुद भी आती हैं। जैसे ताइवान इस पूरे 9 डैश लाइन के अंडर आता है। और अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की, तो फिर मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस, इन कंट्रीज के इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और कुछ आइलैंड्स आते हैं। तो ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है, एक वर्ल्ड वॉर की तरफ, या फिर कह सकते हैं कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जो कि चाइना की तरफ से है। फिर हम देखते हैं चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू है चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री जाने, तो फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यानी कि 1950s के टाइम पर, चाइना और ताइवान एक ही कंट्री हुआ करते थे। लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने का राइज हुआ चाइना में, मेन लैंड चाइना में, और जो दूसरी पार्टी थी उसको सिर्फ सीमित कर दिया गया ताइवान आइलैंड की तरफ बस। तो तभी से चाइना वन चाइना पॉलिसी के अंडर क्लेम करता है कि ताइवान हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। और उसी तरह से ताइवान भी रिटेलिएट करता है कि नहीं, ये पूरा चाइना हमारा है और हम असली चाइना है। तो लेकिन ये तो हुई थोड़ी हिस्ट्री की बात। अगर हम बात करें आज के प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर, तो फिर आज के टाइम पे एक बड़ा इशू है एडवांस सेमीकंडक्टर्स को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल होगा एडवांस सेमीकंडक्टर्स को लेकर। एडवांस सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें, तो फिर उनका यूज होता है कुछ बहुत से मिलिट्री हार्डवेयर्स में, जैसे मिसाइल्स, ड्रोन्स ड्रोन्स जो कि आज के टाइम पर मिलिट्री की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी के टाइप से देखे जाते हैं। जैसे कि यूएस का उसमें एक बहुत बड़ा निवेश है ताइवान में, और ये एक सिचुएशन क्रिएट करता है चाइना और यूएस, जो कि दो आज के टाइम पे सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं, उनको आपस में एक पॉइंट पर कॉन्फ्लिक्ट के तौर से लाने के लिए। तो अगर हम एडवांस सेमीकंडक्टर्स की बात पर वापस आए, तो फिर वर्ल्ड का लगभग 90% एडवांस सेमीकंडक्टर सिर्फ ताइवान मैन्युफैक्चर करता है। और ताइवान की जो कंपनी है टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि सिर्फ 90% मेजर स्टेक रखती है इस एरिया में, और वर्ल्ड की जो 90% सेमीकंडक्टर्स है सिर्फ ताइवान से आती है। तो फिर चाइना इस मार्केट को एक कंपटीशन की तरह देखता है, और वो चाहता है कि ये मार्केट सिर्फ उसके पास रहे। तो ये एक मेजर क्लैश पॉइंट बना हुआ है ताइवान और चाइना की सिचुएशन में। फिर उसके बाद अगर हम मैप देखते हैं यहाँ साउथ चाइना सी का, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन का, तो यहाँ पे हमको बहुत सारे पॉइंट दिखते हैं जहाँ पर आज के टाइम पर मेजर क्लैशेस चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ चाइना की तरफ फोकस करें, तो फिर अभी हमने ताइवान को डिस्कस करा था। और अगर हम उसी के थोड़ा ऊपर देखें कुरील आइलैंड्स को लेकर, जो कि जापान के हैं, और चाइना इसके ऊपर अपना दावा करता है। तो जापान और चाइना के इन आइलैंड्स को लेकर एक डिस्प्यूट है, कुरील आइलैंड्स को लेकर। साथ ही में हमने देखा था 9 डैश लाइन को लेकर, जो कि साउथ चाइना सी में जितने भी कंट्रीज आती हैं उनके साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट करता है। और इसी के रिटेलिएशन में हमने देखा था कि अभी ऊपर जो हमने पॉइंट डिस्कस करा था मिलिट्री को एक्सपेंड करने वाली जो पॉइंट थी, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले की न्यूज है कि फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज किया था, यानी कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की थी। तो ये एक मेजर क्लैश पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। और अगर हम इसी एरिया में बात करें बाकी जगहों पर, जैसे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, तो फिर यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्टिव बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिव पॉइंट्स है, जैसे अरुणाचल प्रदेश को लेकर और लद्दाख वाले रीजन को लेकर। साथ ही में अनरेस्ट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार, और साथ में पापुआ न्यू गिनी की बात करें, तो फिर यहाँ पर सिविल वॉर या फिर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं है। फिर अगर हम अपने एक नेक्स्ट रीजन की तरफ आए, जो कि है रशिया यूक्रेन, यानी कि ईस्टर्न यूरोप वाला रीजन। तो अभी हमने देखा था 2022 में रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी। उससे पहले 2014 में रशिया ने एनेक्स किया था क्रीमिया रीजन को, जो कि यूक्रेन का पेनिनसुलर रीजन है ब्लैक सी की तरफ। तो आज के प्रेजेंट सिचुएशन में रशिया कहता है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो बॉर्डर है रशिया की तरफ से, यानी कि डोनबास रीजन,
तो रशिया डिमांड करता है कि यहाँ पे 2 सेपरेट स्टेट्स होने चाहिए, यानी कि लुहांस्क रिपब्लिक और डोनेट्स्क रिपब्लिक। रशिया इनको सपोर्ट करता है मिलिट्रीली भी, जैसे कि हमने देखा 22 में डायरेक्ट इन्वेजन। हाँ, तो हमने जैसा कि देखा था कि 2022 में रशिया ने एक कारण दिया था अपनी इन्वेजन के पीछे, जो कि था कि हम डायरेक्ट इन्वेड करेंगे यूक्रेन के ऊपर, ताकि हम 2 नई कंट्रीज बना सके, यानी कि लुहांस्क रिपब्लिक और डोनेट्स्क रिपब्लिक, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी। और अगर हम रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर नाटो का एक बहुत बड़ा रोल है। इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर नाटो का एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ, अगर हम इस मैप में देखें तो फिर रशिया के आसपास लगभग 3 कंट्रीज जो कि पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं, जो कि नाटो की मेंबर्स हैं। और अगर हम यूक्रेन बॉर्डर को देखें तो फिर वो एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है रशियन फेडरेशन या फिर रशिया के साथ। और अ, अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करता तो फिर एक बहुत नाटो की जो मिलिट्री है वो उसका डायरेक्टली यहाँ पर रोल होता रशिया के बॉर्डर तक। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट था यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप में। और अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें जैसे मोल्डोवा और बाल्कान्स रीजन की, तो फिर यहाँ पे भी हमको अनरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में एक आर्टिकल है अल जजीरा का। जैसे 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, तो फिर अल जजीरा या फिर अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन छपनी स्टार्ट हो गई थी कि क्या ये मूवमेंट है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। जैसे अल जजीरा का ये वाला हेडलाइन है, यूरोप फेस मोस्ट डेंजरस मूवमेंट ओवर रशिया यूक्रेन टेंशंस, जो कि कोल्ड वॉर के बाद शायद से सबसे बड़ा एक पॉइंट था, एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो लेके जा सकता था। तो इसी तरह की हेडलाइंस हमने उससे पहले भी देखी है, कोल्ड वॉर के टाइम पर भी हमने देखी हुई हैं। तो ये एक और रीजन था जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन में हम आए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 हुआ नहीं। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट रीजन की तरफ जाएँ, जो कि है कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट, यानी कि मिडल ईस्ट वाला रीजन, जिसमें ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन जैसे देश आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स है पावर स्ट्रगल को लेकर। सिविल वॉर्स यहाँ पर कई देशों के अंदर है। और सीरिया पैलेस्टाइन, इजराइल पैलेस्टाइन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि रिसेंटली एक इशू बना हुआ है वर्ल्ड के लिए भी और मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी को लेकर भी। अगर हम डिस्कस करें इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हम प्रोक्सीज का यूज देखते हैं ईरान की तरफ से। अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी, इजराइल ने डायरेक्ट मिसाइल फायर की थी या फिर ड्रोन से अटैक किया था ईरानियन एम्बेसी इन सीरिया पे। सीरिया में जो ईरानियन एम्बेसी थी उसके कॉन्सुलेट पे उन्होंने मिसाइल फायर की थी। तो जिसमें इजराइल के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स की डेथ भी हो गई थी। तो उसको लेके ईरान ने दोबारा से रिटेलिएशन में ड्रोन फायर की थे या फिर मिसाइल्स फायर की थी इजराइल की तरफ। तो ये एक सिचुएशन बनी थी कि शायद से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 जैसे कि हम देखते हैं ज़्यादा कुछ हुआ नहीं और वो सिचुएशन वहीं पे ही एंड हो गई थी, या फिर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट जो अभी भी है, वो हमको देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मैप है, ये है मिडल ईस्ट का। यहाँ पर हम देखते हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को। तो इससे जो नेक्स्ट मैप है, उसमें हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से रीजन्स है जहाँ पर आज के टाइम में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जैसे अगर हम इस मैप को देखें तो लगभग हर कंट्री में हमको, यहाँ की हर कंट्री में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर्स या फिर अनरेस्ट हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम नीचे की तरफ बात करें यमन को लेकर, तो यहाँ पर यमन में हूथी रिबेल्स का कब्जा है वहाँ की कैपिटल पर भी, जो कि ईरान के द्वारा फंडेड, या फिर कहें कि ईरान इनको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को के खिलाफ। और आज की सिचुएशन में हमने देखा था कि रेड सी और जो यहाँ पर ट्रेड रूट है सुएज कैनाल की तरफ, उसको लेकर भी यहाँ पर शिप्स के ऊपर कई सारे अटैक हुए थे जो इजराइल के फ्रेंडली स्टेट्स थे उनके ऊपर।
अगर हम ऊपर की तरफ बात करें जहाँ पर इज़राइल पैलेस्टाइन है, तो यहाँ पर भी हमको बहुत सी सिचुएशंस देखने के लिए मिलती हैं। जैसे हेती हिज़्बुल्लाह जो कि लेबनान में सिचुएटेड है, तो वो इज़राइल के ऊपर अटैक करता है पैलेस्टाइन को फ्री करने के लिए। और सीरिया, इराक जैसी कंट्रीज़ में अनरेस्ट हमको देखने के लिए मिलता है। और साथ ही में एक कुर्दिस्तान कंट्री की डिमांड करते हैं सीरिया, इराक और टर्की के कुछ एरियाज़ में, जो कि एक एथनिसिटी है वहाँ की, और वो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करती है। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्टिव एरियाज थे मिडल ईस्ट में। अब हम बात करते हैं क्या वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है आज की सिचुएशंस को देखते हुए, और जो हमने पास्ट सिचुएशंस देखी थी उनसे कनेक्ट करा है अभी को। तो क्या उसके हिसाब से हमको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा? अब हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि आज के टाइम पर कंट्रीज के स्टैंड्स क्या हैं। जैसे यूएस का रिस्पॉन्स आया था इज़राइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हुआ, उसमें यूएसए का रिस्पॉन्स आया कि हम एक इज़राइल को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इज़राइल के ऊपर कुछ अटैक होता है, तो हम उसमें इज़राइल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो ईरान के ऊपर रिटेलिएट करता है, ऑफेंसिव होता है, तो फिर उसमें हम इज़राइल का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये हमको दिखाता है कि किस तरह से कंट्री बचती हैं, मतलब वॉर्स की सिचुएशन में जाने से बचती हैं, यानी कि डायरेक्टली किसी और की वॉर में जाने से बच रही हैं। और इसी तरह से हमने एक स्टैंड देखा था रशिया यूक्रेन वॉर में भी, जब यूएस से वॉर से पहले बोल रहा था कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे मिलिटरीली भी, और वेपनरी प्रोवाइड करके भी। हमने देखा कि वेपनरी तो यूएसए ने प्रोवाइड करी, लेकिन डायरेक्टली अपने सोल्जर्स के फुट्स उस लैंड के ऊपर उन्होंने नहीं रखे। तो ये दिखाता है कि किस तरह से कंट्रीज बच रही हैं आज के टाइम पे वॉर्स को लेकर। डायरेक्ट इंटरफेरेंस वो नहीं चाहती हैं, प्रॉक्सीज का यूज जरूर करती हैं और वेपन्स को प्रोवाइड करती हैं दूसरी कंट्रीज को। और अगर हम मिडल ईस्टर्न रीजन की बात करें, तो फिर हम बाकी कंट्रीज के भी कुछ रीजनल कंट्रीज के भी स्टैंड देखते हैं। जैसे जॉर्डन, इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रिस्ट्रेन करने की मांग रखी थी यूएन में कि ये जो सिचुएशन है इसको यहीं पे ही रुक जाना चाहिए, इस वॉर को आगे एस्केलेट नहीं होना चाहिए। और रशिया का भी स्टैंड मिडल ईस्ट में यही था कि इस वॉर को यहीं पे ही रुक जाना चाहिए और एक नई वॉर की तरफ शायद वर्ल्ड को नहीं लेके जाना चाहिए। तो ये तो हमने बात करी कि कंट्रीज के स्टैंड्स क्या हैं, और उससे पहले क्या सिचुएशंस हमको ऐसी देखने के लिए मिल रही थी। अब हम देखते हैं कि जो मिलिट्री और पावर स्ट्रगल जैसे पॉइंट्स थे, वो सब हमको आज के टाइम पर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एक जो मेन फैक्टर था, जो कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के क्रिएट करने के लिए के पीछे एक बड़ा मेजर पॉइंट रखता था, जो कि था एक डायरेक्ट इंटरवेंशन इन वॉर्स। वो हमको आज के टाइम पर देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर हम कंट्रीज के स्टैंड्स को देखें, कोई भी कंट्री डायरेक्टली वॉर में एंगेज्ड होना नहीं चाह रही है, और वो सिर्फ कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर, या फिर वेपनरी प्रोवाइड कर कर इनडायरेक्टली, या फिर कुछ सिचुएशन में डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट्स के ऊपर। ये कुछ नंबर्स हैं अल जजीरा न्यूज़पेपर की तरफ से कि इजराइल और गजा वॉर के बीच में कितने लोगों की डेथ हुई, और कितना ह्यूमैनिटेरियन लॉस हुआ या फिर एनवायरमेंटल लॉस हुआ। अगर हम इसमें देखें नंबर्स 34,622, जो कि सिर्फ गजा में मारे गए, या फिर 1139 जो कि सिर्फ इसराइल में मारे गए। ये तो सिर्फ एक रीजन की बात है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड के कई सारे जगहों को देखें, जैसे अफ्रीका में माली, सोमालिया या फिर मोरिटानिया जैसे देशों को, वहां पर भी सिविल वॉर वाली सिचुएशंस है, जहां पर कई सारे लोग मारे जाते हैं और एक स्टेबिलिटी उस एरिया में नहीं रह पाती है, जो कि डेवलपमेंट की तरफ फोकस से पहले सिर्फ एक अपनी जान बचाने के ऊपर देखते हैं। अब इसमें हमने देखा कि वॉर्स के बीच में कितने सारे लॉसेस होते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा लॉस है एनवायरनमेंट को लेकर। जैसे ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल था, जिसमें लिखा हुआ है कि अ साइलेंट विक्टिम हाउ नेचर बिकम अ कैजुअलिटी ऑफ वॉर। तो ये हमको दिखाता है कि नेचर जो है वो वॉर्स के बीच में किस तरह से एक विक्टिम बना हुआ है, क्योंकि नेचर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कंट्रीज
सिर्फ वॉर में एंगेज हो जाती हैं, नेचर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। जैसे अभी हमने यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पर भी देखा था किस तरह से जो रशियन न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके ऊपर अटैक किया गया था रशिया की तरफ से। यूक्रेनियन पावर प्लांट के ऊपर रशिया की तरफ से अटैक किया गया था। उसके ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन अगर वो पावर प्लांट ब्लास्ट होता या फिर उसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता तो फिर उसके मायने हम देख सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हमने जापान में देखा या फिर चेर्नोबिल में देखा है। तो उसका एक नेचर के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता। आसपास का पर्यावरण बिल्कुल नष्ट हो जाता। और अ, अगर हम बाकी वॉर्स की भी बात करें, जैसे रशिया और यूक्रेन इन्वेजन की भी बात करें, तो उसमें भी कई सारे फॉरेस्ट को लेकर कंसर्न जताए गए इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, या फिर अलग अलग वॉर्स में अलग अलग जगहों पर हम देखें तो फिर वॉर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटी को लेकर भी और यहाँ हमारे नेचर को लेकर भी। क्योंकि आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक सबसे बड़ा कंसर्न है अर्थ के लिए, तो उसके लिए एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। अब हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, क्या वॉर हमारे वर्ल्ड के लिए सस्टेनेबल होगी? इसका सीधा सीधा जवाब होगा कि शायद से वॉर हमारे वर्ल्ड के लिए सस्टेनेबल नहीं होगी। भले ही वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन अभी के टाइम में भी जो वॉर्स हो रही हैं वो भी वर्ल्ड के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक एंड करना चाहूंगा। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Akash. It was really a very well presentation. And before going to Q&A session, Akash, if you could open your camera, because मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क अब ठीक है काफी, तो I think आप अपना कैमरा okay, yeah, that's great. So now let's take some questions from our audience. So the first question is from Miss Komal, and she's asking that are there emerging global challenges such as climate change, resource scarcity, or cybersecurity threats that could serve as catalysts for a third world war? Should I repeat the question, Mr. Akash? Akash, are you there? Are you listening me? मुझे नहीं लगता है शैलेंद्र। Akash, if you could listen me, so kindly rejoin yourself. या फिर नेटवर्क कवरेज में चाहिए because your voice is not audible or neither you are visible. एक्चुअली ये डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। Okay, it's completely fine. So okay, let's take the question. So the question is from Ms. Komal, और वो पूछ रही है कि जो emerging global challenges हैं जैसे कि climate change हो गया, resource scarcity हो गई या फिर cyber security ये वॉइस इज नॉट कमिंग। आकाश, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और जैसा कि आप जानते हैं yeah, शैलेंद्र, या गो अहेड। yeah, okay. So yeah, the question was basically कि cyber security या फिर जो global threats हैं, actually I lost my chat box, so I don't know how to. So I think that question was from Miss Komal. So Miss Komal, if you could unmute yourself and ask your question by yourself because I lost my chat box. I cannot see the questions in the chat box. Okay. So first of all, it was a wonderful talk given by Akash. So my question is, are there, emerging global challenges like climate change and resource scarcity as well as cyber security that could, serve as an serve as an elements for having in Third World War? यस, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो रिसोर्सेज को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आज के टाइम पर कंट्री में,
या फिर साइबर सिक्योरिटी को एक थ्रेट हो सकता है, तो उसके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें रिसोर्सेज को लेकर, तो फिर एक लैंड रिसोर्स है जो कि अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में है, जो कि वैसे तो अज़रबैजान उसके ऊपर क्लेम करता है और आर्मेनिया उसके ऊपर भी क्लेम करता है। तो वो एक रिसोर्स को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों कंट्रीज के बीच में, जो कि एक मेजर पॉइंट भी हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाने के लेकर, क्योंकि वहां पर कंट्रीज का हमने डिवाइड देखा है, जैसे कि यूएसए, रशिया और इंडिया वगैरह कंट्रीज आर्मेनिया को सपोर्ट करती है और टर्की जैसी कंट्री अजरबैजान को सपोर्ट करती है। तो वहां पर हम कंट्री डिवाइड भी देखते हैं और रिसोर्सेज को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखते हैं। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ। Okay, that's a really nice answer, Mr. Akash. Now the second question is that I think media is something जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है information को broadcast करने में from one place to another, whether it's wrong or right. Now, what is the role of media and social media in shaping the public perception of international conflicts? अभी जो फिलहाल के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, if you could tell us in connecting the current scenarios as well, मीडिया का क्या क्या रोल है, किस तरीके से पब्लिक के परसेप्शन को, उनके थॉट्स को वो शेप आउट करती है? ओके, तो मैं कहूँगा कि जो मीडिया है या सोशल मीडिया है, वो एक लार्ज स्केल पर जो पीपल्स है उनको एक नैरेटिव बिल्ड करने में हेल्प करती है, या फिर एक परसेप्शन बिल्ड करती है लोगों का। जैसे अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, तो फिर वेस्टर्न मीडिया जिसका डोमिनेंस है लगभग पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तो फिर वेस्टर्न मीडिया ने एक परसेप्शन बिल्ड किया था कि यहाँ पर टोटली गलती जो है वो रशिया की तरफ से है। लेकिन वहां पर एक एस्पेक्ट छोड़ दिया जा रहा था, ज्यादातर न्यूज में एक एस्पेक्ट छोड़ दिया जा रहा था नाटो को लेकर। तो फिर वहां पर हम देखते किस तरह से जो मीडिया है वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रही थी प्रो वेस्ट को लेकर, या फिर एक यूक्रेन को लेकर एक सेंटिमेंट इस्टेब्लिश करना चाह रही थी, सिर्फ एक प्रो यूक्रेन को लेकर। वहां पे दूसरा जो नैरेटिव था रशिया की तरफ से, उसको नहीं दिखाया जा रहा था। तो इस तरह से वो यूज करते हैं। और अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें, तो फिर हम देखते हैं जैसे पास्ट में जर्मन मीडिया ने किस तरह से एक बड़ा नैरेटिव सेंटिमेंट बिल्ड किया था अपने पब्लिक्स में। That's actually right, Akash. Okay, so the last question I'm taking is कि अभी ना, like the contemporary concept which is going on कि it's just a war, like the concept of modern, like चलो युद्ध ही तो है, just a war, right? So how do ethical considerations and how do consideration and the factors involved in such considerations affects from this concept of just a war? आपने ह्यूमैनिटी और सस्टेनेबिलिटी हालांकि अपने टॉपिक में एम में रखा था एज ऑब्जेक्टिव, so I'm just want to know that this modern concept of just a war, whether it's uh, true or whether it's like wrong, if we connect it to the ethical considerations. एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट है जस्ट वॉर वाला, तो इसको हम आज के टाइम में देखते तो हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड सिचुएशन की बात करते हैं तो फिर वहां पे हमको ये शायद से कॉन्सेप्ट सही से देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन जो वॉर से अफेक्टेड एरियाज नहीं है, जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, तो फिर कंट्रीज पैलेस्तीन को लेकर कंसर्न्स तो जताती हैं और एक ह्यूमैनिटी वाले एस्पेक्ट के ऊपर आती तो हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो फिर वहां पे हमको वो सब चीजें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। Okay, that's a really nice answer, Mr. Akash. Now the last question that will be from our side, and which is what was your experience with this platform GSTS, and how was your journey throughout the week? सबसे पहले तो मैं थैंक करना चाहूंगा जीएसटीएस टीम को और मनीष कर्णवार सर को एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए, जो कि बच्चों को मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आज से पहले मैंने कहीं पे भी मतलब इस तरह का कोई कुछ स्पीच वगैरह नहीं दिए, और ये मेरे को प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, या फिर मेरे जैसे कई और बच्चों को अपनी बातों को रखने के लिए और बिना किसी दबाव के लिए।
और इससे पहले अभी वेडनेसडे और सैटरडे में जब हम मिले थे तो फिर वहाँ पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रीली फील कराया गया था और कोई प्रेशर या फिर कोई बर्डन मेरे ऊपर नहीं था अपने टॉक को लेकर। तो मैं इसीलिए थैंक करना चाहूँगा जीएसटीएस टीम को और शायद से आगे भी कभी आऊँ। Thank you so much, Mr. Akash. That was your, I think, first presentation, as you said, but that was really fantastic, and absolutely, you are welcome for your possibilities of World War or such kind of topics 2.0 again on this platform. Thank you so much for giving this talk, and that was really a wonderful talk, Mr. Akash. Congratulations once again. Now, proceeding further, it's time to invite a guest of honor once again for his final remarks. So, मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर शरद को ताकि वो अपने व्यूज अपने इंसाइट्स रखें आज की टॉक पर। आज का जो टॉपिक था पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 उस पर, एंड अपने कुछ सजेशंस भी दें आकाश को, एंड some suggestions about this platform as well. Dr. Sharad. Thank you very much for this wonderful opportunity, Manish sir. I hope I am clearly audible. आकाश, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका, और मनीष सर का इनिशिएटिव है तो मैं निश्चित रूप से इसकी तारीफ करूंगा कि नई प्रतिभाओं को सामने लाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और मौका उन्होंने क्रिएट किया है। आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा और इस पे कुछ समराइज मैं करूंगा। अभी शुरुआत हुई थी इसकी कुछ आगे की पंक्तियों से जो हिरोशिमा के ऊपर उन्होंने लिखा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, जिसे ग्रेट वॉर भी हम कहते हैं, 1914 से 1918 में हुआ। नए नए उपनिवेशों को बनाना, उग्र राष्ट्रवाद की भावना के साथ बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक। बहुत बड़ी संख्या में अनेक महाद्वीपों में ये युद्ध लड़ा गया। बहुत बड़ी संख्या में इसमें लोग हताहत और मारे गए। होलोकास्ट इसमें हम देखते हैं। परमाणु हथियारों का विकास और इस्तेमाल भी हम इसमें देखते हैं। और सैनिकों का, सिविलियंस का, वार प्रिजनर्स का बहुत बड़ा नंबर ऐसा हुआ जिसे हम करोड़ों में भी काउंट पूरा नहीं कर पाते हैं, और वो आगे तक जारी भी रहा। ऐसा नहीं है कि तो इसलिए इस युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या का अनुमान भी सही तरीके से नहीं लगाया जा सकता। तो इससे हम सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जन धन हानि इन दोनों विश्व युद्धों में हुई है। दूसरी बात रही कि इसके दौरान कुछ विशेष बातें भी हुई, जैसे विज्ञान और तकनीक का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ है। वॉर मशीन्स का हम डेवलपमेंट इन दोनों विश्व युद्धों के दौरान देखते हैं। टैंक्स, मशीन गन्स और सबमरीन्स, पनडुब्बी, इसमें डेवलपमेंट इनका हमने देखा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हमने डेवलपमेंट देखा। पहले विश्व युद्ध में जैपलिन के द्वारा जर्मनी ने इंग्लैंड के ऊपर बमबारी की। दूसरे विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि वार प्लेन्स का, एयर फोर्सेस का बड़ी तेजी के साथ और महत्वपूर्ण इस्तेमाल हुआ। तो साइंस टेक्नोलॉजी का एक तरफ डेवलपमेंट हुआ वार मशीन्स के लिए, लेकिन आगे आने वाले समय में हम उसी का एक अच्छा रूप भी देखते हैं जब ड्यूरिंग कोल्ड वार दोनों देशों में प्रतियोगिता हुई और अंतरिक्ष में तकनीकी का कितनी तेजी के साथ विकास हुआ। उसी का एक आगे हम दूसरा रूप देखते हैं कि जब बैलिस्टिक मिसाइल्स के रूप में उसी रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पैरेलल देखते हैं कि कुछ चीज़ों का विकास हो रहा है और कुछ अच्छी दिशा में जा रही हैं, कुछ उसी के साथ साथ विश्व शांति के लिए और मानवता के लिए विनाश के भी हथियार साथ साथ तैयार कर रहे हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हम देखते हैं कि एनर्जी के रूप में आगे आने वाले समय में एक अच्छा इस्तेमाल ढूंढा गया। तो ये सारी चीज़ें मिले जुले और इस तरीके से इस पैटर्न में चलती हैं कि उसे अलग से आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं ये निश्चित रूप से चाहूँगा कि अभी आने वाले कंटेम्प्रेरी और भविष्य में हम किस तरीके से इन चीज़ों को देख सकते हैं।
इसके बाद हमने देखा कोल्ड वॉर एक लंबे समय तक जारी रहा। उसके बाद द्विध्रुवीय जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो एक यूनिपोलर में कन्वर्ट हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि वो मल्टीपोलर की तरफ जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट साथ साथ चलते जा रहे हैं। नव साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद और आर्थिक नीतियां भी किस तरीके से, अभी हमने देखा कि चाइना ने किस तरीके से छोटे छोटे एशियाई और अफ्रीकी देशों को लोन दिया और किस तरीके से उनकी विदेश नीतियों में अपना हस्तक्षेप जारी रखा। आने वाले समय के लिए हम देखते हैं कि संसाधनों के लिए एक मारामारी चल रही है पिछले काफी समय से। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। जल और खनिज संसाधनों पर कब्जे की बात यहाँ तक चल रही है, और यहाँ तक कि अंटार्कटिका पे स्पेसिस की बात है। और अभी हम देख रहे हैं कि चंद्रमा पे भी मिनरल्स की खोज के लिए और ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो कहीं भी पाए जाना दुर्लभ है, उनके लिए एक नई रेस शुरू हो रही है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और स्पेस स्टेशन की चीज़ों को हम साथ साथ देखते हैं। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिला के हमें भी और एक देश के रूप में भी हमें विवश करती हैं कि हम इन चीज़ों को गंभीरता से सोचें और अपनी विदेश नीति की दिशाओं को इनके आधार पर निर्धारित करें। लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ वो सब हम देखते हैं। यूएनओ को उसी के बाद सेकंड चैप्टर के रूप में डेवलप किया गया। उसने कई मौकों पे बड़ी मजबूती के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन आज के हालात में भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि परमानेंट मेंबर्स किस तरीके से वीटो पावर्स और बाकी चीज़ों के आधार पे महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर देते हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस समय सोचने की बात ये है। और जैसा एक आइंस्टीन का भी स्टेटमेंट मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि आइंस्टीन से पूछा गया है कि तीसरे विश्व युद्ध में क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि तीसरा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन चौथे विश्व युद्ध के बारे में बता सकता हूं कि वो पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के बाद मानवता और सारा विकास उसी श्रेणी में पहुंच जाएगा जहां से आदि मानव ने विकास शुरू किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पे हम सभी विचार कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि पिछले कितने संघर्ष पूरे विश्व में अलग अलग समय पे चलते रहे हैं, जिनका जिक्र अभी इस प्रेजेंटेशन में हमने देखा। कुछ चीजें बड़ी अच्छी रही प्रेजेंटेशन में। तो इराक और अफगानिस्तान का मसला अभी कुछ समय पहले शांत हुआ। टर्की, ग्रीस, सीरिया, ये सारी चीजें चलती रही। साथ साथ आर्मेनिया, अजरबैजान अभी भी जारी है। ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरा मिडिल ईस्ट, रूस, यूक्रेन और चीन, ताइवान, चीन सागर के साथ हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बड़ी टसल रही है अभी तक। उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन के सारी पड़ोसी देश और ये चेन ऑफ पर्ल्स के नाम से, मोतियों की श्रृंखला के नाम से भारत को घेरने का जो चीन का एक प्रयास रहा है। तो सारी चीजें विदेश नीति को इस तरीके से प्रभावित करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से है कि भारत ने अपनी विदेश नीति को शुरू से ही गुटनिरपेक्षता के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। और बाइपोलर में भी, यूनिपोलर में भी और मल्टीपोलर में भी हम आशा यही करेंगे कि भारत की विदेश नीति उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। अभी कंटेम्प्रेरी में क्या रहेगा कि आज के समय में तकनीकी ने और इंटरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। तो हम इसे एक ग्लोबल विलेज के नाम से भी जानते और समझते हैं कि वर्ल्ड आज का वी कैन से दैट इज अ ग्लोबल विलेज। साइबर गतिविधियां जहां भी हैं वो पॉजिटिवली हम लेते हैं तो दुनिया को जोड़ने का काम करती हैं। सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी सामाजिक राजनीतिक विचारधारा के प्रचार प्रसार में। तो हम यही चाहेंगे कि विश्व शांति के पक्ष में एक मजबूत भूमिका सोशल मीडिया भी निभाए। दूसरा, विश्व युद्ध को किसी भी तरीके से फैलने और रोकने के लिए आर्थिक गतिविधियों में आपसी निर्भरता और सहभागिता बड़े एक महत्वपूर्ण रोल आगे करेगी। जब सभी देश इकोनॉमिकली कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से तो किसी भी किस्म की युद्ध लड़ाई उन्हें उस युद्ध को रोकने में मदद करेगी। तीसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि किसी भी विश्व युद्ध का या बड़े पैमाने पे जो इस तरीके के संघर्ष होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एक तात्कालिक कारण जरूर होता है। इंस्टेंटेनियस कुछ चेंज ऐसी होती हैं जो एक
ट्रिगर का काम करते हैं बड़े संघर्ष को शुरू करने में। तो निश्चित रूप से किसी भी छोटे संघर्ष को रोकने में भी हमें उतना ही गंभीर रहना चाहिए, जिससे वो आगे किसी बड़े संघर्ष को शुरू करने का कारण ना बन सके। और मैं समराइज करूंगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मनीष सर, आप शुभकामनाओं के पात्र हैं। आपकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि लॉकडाउन के बाद से शुरू किया गया ये कार्यक्रम और आज उसी निरंतरता के साथ, उसी मजबूती के साथ और उसी पार्टिसिपेशन के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को, पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं दूंगा। और एक पुराना कोट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारा बहुत प्राचीन एक आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी कि पूरी वसुधा को एक कुटुंब, पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में मानना इन सभी संघर्षों को कहीं ना कहीं विराम लगाने का काम करेगा। तो यदि हम अपने मानवता के प्रति अपने सम्मान और आदर्शों को इस तरीके से आगे ले पाने में सक्षम हो सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि विश्व शांति के लिए हमारा ये प्रयास, हमारा यह यज्ञ निश्चित रूप से मानव कल्याण के लिए और इसी दिशा में हमें अग्रसर कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Thank you so much, Dr. Sharad, and once again, thank you so much. आप हमारे साथ आज जुड़े और आपने हमें इतने अच्छे अच्छे सजेशन दिए, and I really like that Einstein का quote for sure. So thank you so much once again. Uh, Now it's time to invite our to-be speaker for the next Sunday, and for this I would like to invite Miss Aditi, and she will be speaking on the topic fire disasters on next Sunday. So, Miss Aditi, you could present your introduction and objectives. All right. Am I audible and visible? Yeah, you are. Dousing fire is one man's job, but preventing fire is every man's job. Greeting to one and all present. Myself Aditi, a student of IB College from Department of Political Science, University of Delhi. I invite you to embark upon the various methods to develop immune and preserve, protect, and develop our nation against fire disasters. The research is titled Condoning Rules, Life's Doom. Let's delve into the objectives of the research. The first objective is to inquire into the causes of frequent, intensified, and recurrent fire breakouts with special reference to Delhi Alipur fire incidents. The second is the rules and regulation in place and their systematic violations. The third is the way forward in Indian context, borrowed from Indian philosophy, away from Eurocentric solutions to enforce laws. Let's enlighten the part to resolve the engulfing disaster to effectively enforce our vision for Viksit Bharat, in which fire disasters are not present to prohibit our prosperity. Do join next Sunday. Thank you. Thank you so much, Miss Aditi, and we'll surely join you on next Sunday. And thank you so much once again for joining us in this another evening. Such a wonderful audience. And before handing over the moderation to Manish sir to for vote of thanks and to wrap up this session, I would like to read some of the last lines of the poem I have begun with. मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साथी है. Thank you so much, and I would like to hand over the moderation to Dr. Manish Karnwala. Wonderful, Salendra. Really, it's a fantastic. Why World War II? I don't know why this young guy chose this topic. I was there with him with all the 2 sessions or 3 sessions. I want to alter the topic, but as you know, our stage is very democratic. So some of my moderators told, no, if the young guy has this idea that World War III will be
uh, in the coming months. So it's okay. So wonderful depiction of all those ideas. Before giving vote of thanks and my comments, I would like to invite two of my students from audience for very quick remarks, because Aditi told very amicably, आग एक लोग लगाते हैं, बुझाने के लिए शायद कई लोगों की जरूरत पड़ती है. तो क्वेश्चन भी था इस पूरे सेशन में और आंसर भी था इस पूरे सेशन में. इट्स वेरी पर्टिनेंट दैट वन क्वेश्चन एंड वन आंसर गिवन बाय टू young bright minds of Delhi University. So I would like to invite Mudit Bhardwaj for quick remarks, because he is from political science, and one Chandan Jha, he is from the Department of East Asian Studies. So we are having two another young scholars. So 30 seconds for you both. How will you prevent the World War III? Firstly, Mudit. And Mudit was the first speaker of this GSTS 1. GSTS, the first speaker of Graduate Scholar Talk Series, 7th February 2021. And I think he's the very few amongst all that he never ever stopped to come in this GSTS platform. So Mudit, 30 seconds for you. Thank you very much, sir. Good evening, everyone. First of all, I would like to congratulate Mr. Akash Tyagi कि अभी वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट और इतने अच्छे तरीके से जियो पॉलिटिक्स को, जियो ग्लोबल डायनामिक्स को समझा. तो ये बड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी क्या है. लेकिन जब ये क्वेश्चन हम पूछते हैं तो मेरे को अभी रिसेंटली लास्ट मंथ तब रशियन प्रेसिडेंट ने पावर फिर से अज्यूम की, तो उनका एक स्टेटमेंट मेरे को याद आता है. तो उन्होंने कहा कि जो अभी नेटो अलायंस चल रहा है और जो जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था, वी आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम अ फुल स्केल वर्ल्ड वॉर 3. सो पॉसिबिलिटी को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते. लेकिन वहीं वो एक चीज और कहते हैं, आई थिंक हार्डली एनीवन इज इंटरेस्टेड इन दिस. सो उसमें ये इस लाइन से उनका ये मतलब था कि ना हम लोग चाह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, ना कोई और चाह रहा है वर्ल्ड वॉर 3 हो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी रीजनल टेंशन से आप लोग देख रहे हैं. यूक्रेन रशिया ले लीजिए, इजराइल हमास ले लीजिए, यमन में हाउदी रिबेल्स के साथ ले लीजिए, सूडान देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, इथोपिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, माली, नाइजर, बुर्किना फासो. तो इतने सारे ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की आपको आवश्यकता ही नहीं है. ऊपर से और अगर मैं थोड़ा सा इसको और बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहूंगा कि आप देखिए फूड इनसिक्योरिटी इतना बड़ा इशू कि शायद जितना वर्ल्ड वॉर 3 से कैटास्ट्रोफ नहीं होगा, उससे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी से हो रहा है. क्लाइमेट चेंज आप भारत में भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि डेली सुप्रीम कोर्ट एक दो वर्डिक्ट्स डेली आ जा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 में ना कोई भी इंटरेस्टेड है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, डिप्लोमेसी, डायलॉग, और कोई रास्ता नहीं है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 को रोक सके या किसी भी रीजन कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके. मुझे इनवाइट करने के लिए Okay, Mudit, thank you. Chandan, are you here? And after that, Smita. Yes. Chandan? Yes, sir. 30 seconds. कैसे रोकें First World War? What is the role of China to prevent First World War? And what is the role of Africa to prevent World War? By Smita. So, Chandan. Thank you, sir. First of all, I'm really impressed by the topic by Akash. And regarding your question, actually, right now, China and other countries of the global south, they are having such amount of power, GDP, and all amount kind of economic hegemony that the European powers, the way they used to be 70 years back, things are in a very different way now. तो नाउ अब मुझे नहीं लगता है कि कोई वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ ऐसा बचा हुआ है, क्योंकि जिस वर्ल्ड को वो लड़ रहे थे और जिस वर्ल्ड में वो लड़ाइयाँ चल रही थी, वो सारे कॉज और वो सारे कारण जो है वो अब अलग लेवल पे जा चुकी है. तो चाइना और इंडिया जैसे जो कंट्री हैं वो बहुत ही 5,000-6,000 साल का इनका सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है. तो ये लड़ाइयाँ क्या होगी कि लोकलाइज्ड होगा, छोटी मोटी झड़पें चलती रहेंगी, बट एक ग्लोबल लेवल पे जो लड़ाइयाँ हैं उसके नहीं होने के दो कारण हैं. एक तो ऑलरेडी वी हैव सीन कि हाउ वर्ल्ड वार्स कैन डिस्ट्रॉय द थिंग्स, तो सबको अभी भी नागासाकी हिरोशिमा की बातें याद हैं. और दूसरी बात ये कि अब वर्ल्ड में इतने सारे वेपन्स बन चुके हैं कि सबको पता है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो जैसे कि हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर सर कह रहे थे कि वही आइंस्टीन वाली बात हो जाएगी कि वंस अगेन वी विल गो इनटू द स्टोन एज. Thank you, Chandan. Thank you, Yes. From Africa, Smita, are you here? Smita?
लगता है उसने मेरे रिक्वेस्ट पे ज्वाइन करके छोड़ दिया है. तो फ्रॉम अफ्रीका, एनीवन want to say something how Africa restrained this World War III? Okay, no one. So may I invite Mridusmita from Dayal Singh College? Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, amazing talk, amazing discussion, which I am enjoying thoroughly because my PhD was also on peace and conflict issues. What I gathered from it is that any kind of conflict, it cannot be resolved wholly. It can only be addressed. This is my take. Another take which I have uh, through the entire conversation is, to a real war, to a real. Mridusmita, we lost you in between. Your voice, your voice, we lost your voice. So, hello. The world Yeah. is at present. Am I audible? Now you're audible. Don't move. You are audible right now. Yeah. Okay, so to a real war example, to happen, like World War III to happen, geoeconomics and geopolitical reason has to converge at a particular location, and which I don't see happening in the near future. The world is at present going through a financial turmoil, you know. So look at the prices of gold and silver. So it's going up and up. So that is my take on the whole conversation. Thank you Thank all you. very Thank much. you. Thank you, Mridusmita. Okay, so Komal, what's your take? But without Africa, because the most of the war for the Africa. So what's your take, Komal, for few 30 seconds? Yeah. Yes, sir. So first of all, it was an amazing talk, sir, and he clearly, depicted the idea of the war, the upcoming wars that can happen between the continents itself. So it was amazing to see that how China and Taiwan can, be the part of these wars, and how Indo-Pacific region can be, and all this. It was so amazing. I just want to suggest one thing, that this whole topic is very large, because it deals with, the upcoming third world war. So the prospects of third world war is quite wide, and he have touched, I guess, some aspects only, like the intention between the nations, the elements, or the components that are missing, not missing. I just want to suggest, if he would like to go through in his upcoming research about some more ideas regarding, as I raised the question about the scarcity of the resources and cyber security. That is one of the most like, of course, this globalized world is now at the pace of this Okay, digitalization. Komal, thank you. But my question is how Africa stop this war? Okay, Sir, we don't have time. We don't have time right now. We'll meet next time. We'll discuss. Thank you very okay. much. But I have only two quotes. I know this is a very beautiful topic, beautiful in this sense. Everybody wants understanding. Everybody wants peace. But peace through war, nobody wanted, or nobody will want peace through war. So this is the old perception कि युद्ध के बाद शांति आएगी और पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं. So these are the very utterly nonsense thing. Peace cannot kept by force. It can only be achieved by understanding. This is the only quote Albert Einstein, because it's not my quote. So it can be only achieved by understanding. You understand me, I understand you. Africa understand Europe, Europe understand Africa, China. So this is the very realistic, because I'm the history student and teacher, so I'm not going to eye at these complications. Otherwise, ultimately, complications gives nothing to this human civilization. Again, we are going towards the Stone Age, if it's true and told by our guest of honor. So why we need these kind of technology
like 3G, 4G, and 5G. So really, and Africa, yes, Komal just wrote, Africa is very resourceful. To stop providing others resource for these kind of weapon, because the most of the material coming out from extract economy coming up the Africa. So understanding is the most important. I understand you and you understand me. So this is the my word. Thank you, Salendra, for the moderating this whole session, and really wonderful session, because I saw this is the first time from my previous college, Samla Liebling College, so many students and teachers are joining. So thank you, Mr. Tyagi, for coming with these band baja Bharati wale log ke saath. So thank you very much for joining. And really, it's a wonderful talk, Akash. I know that previously you were a little bit hesitant, but right now you're too confident and you to work to elaborate all these things. But I 100% sure with your deliberation and our guests and our audience speculation that World War III is not going to be reality. Sorry for this, but because there's so many small wars are going on in India and outside India, also the war of perception, war of ego. So many wars in this world is going on. Okay, so being yourself, and we find solution by the peace. बुद्ध ने बोला था कि दो एक्सट्रीम को फॉलो नहीं करना चाहिए. Don't involve in the worldly thing and don't go for the other world. So follow the middle path. So always follow the middle path. This is my suggestions, my idea. Thank you, my graduate, postgraduate, MPhil and PhD student, my former colleagues and my now colleagues for joining this GST. It's a wonderful evening without coffee. So thank you very much. And the coming speaker, Miss Aditi. So really wonderful that we'll listen you in the next Sunday. So on next Sunday, thank you very much all. And thank you, sir, guest of honor Saras sir, for joining us for this wonderful platform. और भाई आप लोग जो भी कॉलेज से जुड़े हुए हो, आप लोगों को अलग से इनवाइट करने की जरूरत नहीं है. ये आप ही का प्लेटफॉर्म है. मैं तो यहाँ पे हायर्ड पर्सन हूँ. ठीक है ना? दिस इज प्लेटफॉर्म बाय यू. Okay, so kindly come. So, Mr. Prime Minister and President, can we leave? Yes, sir. Okay, thank you, thank you, thank you.